So good morning. So we'll start with a new topic, art and culture today. Okay. So art and culture basically we'll be dealing today will be your architecture part. ठीक है. आज जो है हम आर्किटेक्चर देखेंगे. आर्किटेक्चर ब्रॉडली विल स्टार्ट फ्रॉम योर एंशियंट, फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन. देन विल सी कि आपकी जो मेजर डिफरेंट एम्पायर्स से हाउ दे हैव शेप्ड योर आर्ट, स्पेशली आर्किटेक्चर किस तरीके से आपका चेंज हुआ है. देन विल मूव ऑन टू योर केव आर्किटेक्चर कि आपके रॉक कट केव्स टेम्पल्स जो आपके बने थे आइदर और एल्स यू हैव केव शेल्टर्स जो बने थे वो कहाँ कहाँ पे किस किस क्या कहते हैं आपके किंग्स ने किस तरीके से बनाए थे. देन विल मूव ऑन टू योर टेम्पल आर्किटेक्चर विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि यू हैड वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, बी इट आइदर योर नॉर्थ इंडियन टाइप और यू हैव साउथ इंडियन टाइप एंड यू हैव अ मिक्स टाइप विच इज फ्रॉम बोथ द मिक्सचर ऑफ बोथ दीज थिंग्स. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई यू वांट टू, you should be knowing art and culture. Apart from knowing ki it is one of the most commonly asked questions in prelims, you need to understand why you must be aware of art and culture. Art and culture अगर आपसे पूछा जाए what do you mean by culture, can anyone of you say कि वो ट्रेडिशन और something like उनके जो भी कम्युनिटी जो भी फॉलो. तो how your civilization is different from culture if I'll say, how can you? Because history से लेके मतलब आज तक movement होता रहा है. No, what do you mean by civilization and how it is different from your culture? So civilization like लोग जो भी settle है something It's a group of people, but the culture is performed by every individual differently. Civilization का subset is culture. Yes basically. sir. Civilization का Culture is a subset of civilization. culture is a subset of civilization you mean to say, Yes sir. or else vice versa. Why so? The civilization बड़ी चीज़ है. Yes sir. Culture is a particular communities follow. ठीक है. So you have कि civilization is more associated with a particular sector कि कहाँ पे किस तरीके की civilization आपकी चली है. ठीक है. Culture is more or less related to a ongoing process कि what it has shaped. तो the total is termed as your culture कि किस तरीके से it has evolved. Civilization is more respected, is said more with respect to an area. ठीक है. एक एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे people have followed a particular type of customs, beliefs, practices. ठीक है. that we are calling it to be your civilization. ठीक है. जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं तो you only talk about the places जहाँ पे those people were living and in particular time when they were living. ठीक है. and when you say about culture of India it encompasses your Indus Valley civilization also. ठीक है. it is a broader thing and civilization is subset because it specifies you about कि किस place में है और किस particular time में है. We have seen a similar type of thing in your environment also. You remember population की definition क्या थी जब हम अलग अलग इकोलॉजी में stages देख रहे थे. Population also had a similar definition कि amount of the species which are living Yes. at a particular place at a particular defined time कि इस particular time में ही कितनी population होगी. उसी तरीके से your civilization is there. ठीक है. So when you read about culture you also read about the history, you also read about the evolution. ठीक है. कि किस तरीके से लोगों की beliefs या practices वो सारी किस तरीके से evolve हुई over a period. And then also you will also try and relate कि why such things happened there. ठीक है. You need to be very much aware कि what are the geographical factors, what were the historical factors, what were the political factors. ठीक है. which shaped such art and culture there. ठीक है. अभी आप हैं बाद में when you will become your आप जब भी you will be part of administrators. ठीक है. then you will understand कि art and culture का importance कितना ज़्यादा रहता है because it helps you to connect with the local public. ठीक है. जो local demography आपकी रहती है the art and culture of that particular area helps you to connect. You will find this to be a very common practice among politicians. ठीक है. आप देखेंगे जब भी politicians will try and move to different parts they try and wear your traditional dresses. ठीक है. उनके जो customs हैं उनके जो rituals हैं you will see they will try and follow that because you will find people can very easily relate कि जब आप उनके आर्ट या उनके कल्चर्स को आप रेस्पेक्ट करते हैं या फिर आप उनका कल्चर को फॉलो करते हैं. सो आर्ट एंड कल्चर इज़ नॉट जस्ट कि आपको यहीं पे आपको मदद करेगा बी इट इन योर प्रीलिम्स और मेंस. ठीक है. बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स
बट ओवरऑल जब आप आगे अपनी जर्नी में जाएंगे, व्हेन यू विल बी अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, आर्ट एंड कल्चर विल अगेन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. तो हेयर व्हाट यू विल ट्राई टू डू इज कि ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ टू लुक एट थिंग्स. कि अगर आपको कोई एक टेम्पल दिखाया जा रहा है, कोई आपको एक केव दिखाया जा रहा है, कोई अगर लेटर ऑन विल सी डांस फॉर्म्स, कोई भी आपका कोई बिलीफ अगर देखा जा रहा है, यू ट्राई एंड विजुअलाइज कि हाउ यू शुड अप्रोच एट दोज थिंग्स. ठीक है, अगर आप आगे से अगर कोई इस तरीके से चीज़ देखें तो यू मेक श्योर कि दिस बिकम्स योर हैबिट एंड हाउ यू अप्रोच दोज थिंग्स. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ अ कल्चर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर इज योर वे ऑफ लाइफ. ठीक है, कि हाउ यू पीपल आर ड्रेसिंग, हाउ दे आर बिहेविंग, किस तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, क्या क्या आपकी बिलीव्स हैं, दोज आर विल बी योर पार्ट ऑफ कल्चर. ठीक है, तो कल्चर की जब हम बात करते हैं तो कल्चर इज जो इंडिया का कल्चर है, वी ऑलवेज से कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, यू हैड ब्रॉडली 2 या 3 मेजर कल्चर्स आपके थे, लेकिन जो कंटिन्यूस जिसकी सिविलाइजेशन आप कहते हैं, जिसका आपको देर इज़ अ कंटिन्यूस ट्रेंड इज़ ऑफ इंडिया ओनली. ठीक है, अगर आप मेसोपोटामिया का देखेंगे, आप बाकी एरियाज़ का देखेंगे, ठीक है, यू विल फाइंड कि देर हैज़ बीन अ ब्रेक. ठीक है, देन अगेन इट वॉज अ रिवाइवल. लेकिन इंडिया हैज़ शोन द वर्ल्ड कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कंटिन्यूस, क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन और कंटिन्यूस कल्चर, जहाँ पे आप देखेंगे कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ जैसे से वाराणसी एंड ऑल, दे आर सेड टू बी द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट सिटीज़. ठीक है, कि जब से पुराने टाइम से अभी तक जो पॉपुलेशन जहाँ पे सबसे पहले रही है कंटिन्यूस फॉर्म में इज़ इन फ्रॉम योर वाराणसी. ठीक है, तो जब आप कल्चर की बात करते हैं तो ब्रॉडली वी विल से कि इट एनकम्पासेस योर ऑल दीज थिंग्स, कि किस तरीके का आपका किस तरीके के आप कपड़े पहनते हैं. ठीक है, कि किस तरीके का आपका वर्क कल्चर है. ठीक है, व्हाट इज़ योर मेजर प्रोफेशंस, कि बी इट योर एग्रीकल्चर है, आप किस इंडस्ट्री में है, किस तरीके का आपका वो कल्चर हो गया, किस तरीके की लैंग्वेज आप बोलते हैं. ठीक है, किस तरीके की मेजर मेडिकल प्रैक्टिसेस यू आर हैविंग. ठीक है, देन ऑल्सो कि विच इज़ द मेजर रिलीजन इन दोज एरियाज. ठीक है, किस तरीके का खाना आप खा रहे हैं, व्हाट देर इज़ अ डिफरेंस, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फोक आर्ट. ठीक है, हम बाद में देखेंगे देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ फोक एंड अ क्लासिकल. ठीक है, जब आप क्लासिकल किसी चीज़ को कहते हैं कि जैसे से वी ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म क्लासिकल डांसेस, है ना. तो क्लासिकल और फोक में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लासिकल डांस एंड अ फोक डांस. फोक डांस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होता है, जैसे भरतनाट्यम. तो क्लासिकल डांस वो जो इंडिपेंडेंट मतलब लोकल हो, जो वो लोकल ट्राइब वगैरह जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो क्लासिकल डांस. नहीं, देखिए पहले से दोनों चलते आ रहे हैं. देयर इज नॉट एज स्ट्रिक्ट डेफिनेशन कि कौन सा पहले से चलते आ रहा है कौन सा. क्लासिकल एंड फोक आर ब्रॉडली डिवाइडेड. सबसे पहला जो डेफिनेशन है, यू हैव दिस इंस्टीट्यूशन इंडिया में CCRT. ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूशन है. व्हाट दिस इंस्टीट्यूशन डज, इट एनलिस्ट, कि ये एनलिस्ट करते हैं कि कौन कौन से डांसेस या कौन कौन से म्यूजिकल फॉर्म्स या कौन कौन से बाकी सारी चीज़ें दे कम अंडर योर क्लासिकल कैटेगरी. एंड क्लासिकल कैटेगरी इज मोर और लेस रिलेटेड टू कि किस एरिया में आपके वो फॉलो होते हैं. ठीक है, यू ऑल्सो हैव अ स्पेसिफाइड एरिया फॉर क्लासिकल डांसेस ऑल्सो. ठीक है, कि जैसे अगर आप बात करेंगे कि आपके कुचिपुड़ी कहाँ पे हो गई, दैट विल बी डन मेनली इन योर आंध्र प्रदेश. ठीक है, मोहिनी अट्टम आप देखेंगे तो केरला में. ठीक है, तो लाइक दैट यू हैव अ स्पेसिफाइड एरिया. बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर कल्चर इज कि यू हैव सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, ये रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग वो डांस किया जाएगा. ठीक है, कि आइदर मोस्ट ऑफ द डांसेस और मोस्ट ऑफ दीज प्रैक्टिसेस यू हैव, कि जैसे स्टार्टिंग में आपको क्या कहते हैं, भगवान की पूजा करनी है. ठीक है, यू हैव अ सेट कि यू हैव टू डू आराधना ऑफ गॉड एंड इट हैज़ टू बी डन इन दिस पर्टिकुलर वे ओनली. ठीक है, तो यू हैव अ सेट ऑफ डिफाइंड रूल. जब एक सेट आपको मिल जाता है कि देन कि इस तरीके से ही आपको करना है, इट कम्स अंडर योर क्लासिकल कैटेगरी. ठीक है, यू कैन नॉट डिविएट फ्रॉम दैट. ठीक है, कि ये चीज़ें आपके डांस फॉर्म में आनी चाहिए कि इसके बाद ये होगा. लाइक योर मोहिनी अट्टम जो था, इट वॉज स्ट्रिक्टली सेड कि ओनली गर्ल्स कैन डू मोहिनी अट्टम. इट हैज़ टू बी डन विथ योर वाइट साड़ी. ठीक है, तो एक स्पेसिफिक चीज़ें आपकी डिफाइंड रहेंगी क्लासिकल में, वेर एज इन फोक यू विल नॉट हैव दैट डिफाइंड कैटेगरी. ठीक है, जैसे फोक हो गया भांगड़ा,
ठीक है, और लड़कियों के लिए गिद्दा, ठीक है। जैसे आप उस फोक डांस को अगर आप देखेंगे तो यू डू नॉट हैव ए फिक्स्ड कि आपको यही करना है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ रीजन स्पेसिफिक की अगर आप देखेंगे तो भांगड़ा इज मोर एसोसिएटेड विथ योर पंजाब, है ना, तो एरिया वहाँ पे भी आ जाता है, बट देर इज़ नो सच डिफाइंड कि इस तरीके से आपको करना है। तो फोक एंड क्लासिकल का जो मेजर डिफरेंस है वो बस यही है कि कहाँ पे स्ट्रिक्ट आपका है, द मोर स्ट्रिक्टनेस इज इन योर क्लासिकल डांसेस, और दैट इज़ द रीज़न यू विल फाइंड कि दे आर मेंशन्ड अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक आपकी सब डिपार्टमेंट है CCRT, दे ओनली टेल कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी कल्चरल में है, ठीक है। देन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। You will have the website, CCRT की अपनी वेबसाइट है, you will go there and you can see कि they have the list of all those cultural as well as folk things, ठीक है, कि जो भी आपका we'll also discuss those here also, ठीक है। तो जब कल्चर की बात करते हैं, इट हैज़ बोथ मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल गुड्स, ठीक है। मटेरियल्स में वी हैव ब्रॉडली ड्रेस, फूड्स एंड फिजिकल गुड्स, एंड नॉन मटेरियल की जब आप बात करते हैं तो किस तरीके के आइडियाज़, बिलीफ, प्रैक्टिसेस जो आपके चलते हुए आ रहा था, दोज विल बी पार्ट ऑफ योर नॉन कल्चर, मतलब नॉन मटेरियल गुड्स ऑफ योर कल्चर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल हेरिटेज? कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या होता है? हाँ, जो आपकी प्रीडिसेसर से आपको मिल रहा है, ठीक है, समथिंग विच यू आर इनहेरिटिंग फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है, इन विच यू आर फॉलोइंग राइट नाउ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, लाइक मेनी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विच स्टिल फॉलो, ठीक है, ऑल दोज आर पार्ट ऑफ आर कल्चरल हेरिटेज विच वी आर गेटिंग इट फ्रॉम आर एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन शेप योर कल्चर एज यू कैन कल्चर, यू कैन गेट इट लर्नड एंड एक्वायर्ड, ठीक है, कि आप सीख सकते हैं उसको, एंड यू कैन ऑल्सो एक्वायर, आप बी इट आइदर फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम अ पर्टिकुलर टीचर, ठीक है, वहाँ से जो है आप कल्चर के बारे में उसको सीख सकते हैं। व्हाट इज़ अ कल्चर? कल्चर इज़ ब्रॉडली इट इज़ शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू ऑलवेज विल हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल विच विल बी शेयरिंग अ पर्टिकुलर कल्चर। यू विल फाइंड कि देर आर फ्यू कम्युनिटीज, ठीक है, विच स्टिल होल्ड्स वेरी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जैसे हमने आपका देखा था इन केसेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार यू हैड वेरियस ट्राइब्स, है ना, कौन सी ट्राइब थी? सेंटिनलीज, है ना, तो सेंटिनलीज ट्राइब्स आर देयर, ठीक है, सो दोज दे विल बी हैविंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कल्चर, ठीक है, तो उनका कल्चर विल बी देयर, ठीक है। इट इज़ क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब है कि इट हैज़ ऑल द डायमेंशंस, कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप नहीं डिस्कस करते हैं। व्हेन यू से इट अबाउट कल्चर यू एनकम्पास ऑल द थिंग्स, की जो भी एक ह्यूमैनिटी से रिलेटेड आप जितनी भी चीज़ें सोच सकते हैं, बी इट मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ अ डायनेमिक क्वांटिटी, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी कीप ऑन चेंजिंग, हमेशा जो है आपका ये चेंज होता रहता है। दिस इज द रीज़न वाई यू फाइंड कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट्स जो लोग देते हैं कि जैसे आप किसी भी चीज़ को अगर चेंज करना चाहते हैं, पीपल गिव आउट दिस आर्ग्यूमेंट कि आप इसको नहीं करिए बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ठीक है, सो दैट आर्ग्यूमेंट इज ओनली अ फेलियर बिकॉज योर कल्चर इज नेवर स्टैटिक, ठीक है, कि जैसे अगर आप किसी भी चीज़, किसी भी प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, लाइक इट वॉज सेइंग इन केस ऑफ योर सबरीमाला, ठीक है, कि यू, हाँ, ट्रिपल तलाक हो गया, आप किसी भी ऐसे कल्चरल प्रैक्टिस के बारे में जब आप बात करते हैं, एंड व्हेन यू से कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड यू शुड नॉट बी टिंकरिंग विद इट, या फिर आप उसको चेंज नहीं करेंगे, द आर्ग्यूमेंट फेल्स जस्ट बिकॉज कि कल्चर इन इट सेल्फ इज नॉट अ स्टैटिक थिंग, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज अ डायनेमिक क्वांटिटी एंड इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग एंड चेंजिंग, ठीक है, तो यू आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी ऑन द प्रीमाइस, यू विल नॉट फाइंड योर, क्या कहते हैं, लॉयर्स एंड ऑल एवरीवन दे कैन नॉट आर्ग्यू ऑन दिस प्रीमाइस इन कोर्ट्स कि कल्चर की, हमारा जो कल्चर है इट इज़ हार्मिंग आवर कल्चर, ठीक है, यू कैन शिफ्ट इट फ्रॉम कल्चर टू रिलीजन बिकॉज रिलीजन कम्स अंडर योर फंडामेंटल राइट, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न यू विल फाइंड कि द आर्ग्यूमेंट शिफ्ट फ्रॉम कल्चर टू रिलीजन जब आप इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, वेरएज कल्चर के बेसिस पे आप उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव सीन कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, अगर आप कल्चर का इम्पोर्टेंस देखेंगे, ठीक है, तो समथिंग इज कि इट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कल्चर की, इट
शेप्स ऑल द पीपल और ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग देयर, ठीक है, कि किस तरीके का कल्चर है उस तरीके से ही आदमी इवॉल्व होता है, ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ अ कल्चर. लाइक वी आर लिविंग इन इंडिया, तो हमारा जो कल्चर होगा, हमारी जो बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस होंगे विच विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम से अ पीपल हु इज लिविंग इन अ डेवलप्ड कंट्री और अ पर्सन हु विल बी लिविंग इन अ, क्या कहते हैं, मोर रिलीजियस कंट्रीज, ठीक है. जैसे इस्लामिक डेवलप्ड कंट्रीज में जो उनकी बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं वो एकदम अलग होंगी हमसे, ठीक है. तो जिस तरीके का आपका कल्चर है, इट शेप्स कि आप किस तरीके से आप बिहेव करेंगे, या किस तरीके से आपको वो आगे काम करना है, ठीक है. ठीक है, वी हैव सीन दिस. देन विल मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा इज योर इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है. तो इंडियन आर्किटेक्चर में ब्रॉडली विल स्टार्ट विथ योर 5 to 6 आर योर मेजर सब डिविजन्स, ठीक है. इंडियन आर्किटेक्चर में जब हम देखेंगे तो जो सबसे पहला सब डिवीजन आता है विच इज़ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म एंशियंट टाइम में इज़ योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है. तो विल स्टार्ट विथ योर इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो जब आप आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर इज हाँ कि किसी तरीके का इट इज़ अ मोर और लेस अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. एंड हाउ विल सी कि डिफरेंट टाइम्स में अलग अलग मेटल्स और डिफरेंट मटेरियल्स दे वर यूज्ड फॉर बिल्डिंग योर आर्किटेक्चर. यू विल फाइंड कि किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया गया था हैज़ रिजल्टेड इनटू वेदर दैट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हैज़ रिमेन्ड और नॉट, ठीक है. क्यों पर्टिकुलर जगह पे, लाइक वी हैव डिस्कस जब हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट वाज द रीज़न व्हाई रेड फोर्ट वाज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर मिलता था वाज योर रेड सैंडस्टोन, ठीक है. यू विल फाइंड कि यू हैड अ प्रेवलेंस ऑफ, क्या कहते हैं, काइंड ऑफ अ वाइट सैंडस्टोन इन योर सारनाथ एरिया, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमारा योर नेशनल एम्बलम जो हमारा आता है, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ योर वाइट सैंडस्टोन, जो चुनार का पत्थर आपका जो मिलता है नियर योर सारनाथ. तो मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स दे आर शेप्ड बेस्ड ऑन द, you must have heard कि regarding there was a traveler Megasthenes, ठीक है, he visited your चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है. उनके किंगडम में जब वो आए थे he told कि he have never seen इतना अच्छा पैलेस किसी भी और राजा का, ठीक है. The palace was very grand. We do not find any remains of that palace only because it was made up of wood, ठीक है. He told कि it is completely made up of the wood. तो over a period that wood has decomposed or it must have been eroded. उसी की वजह से will not find any traces of your temple of चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है. So it is the reason why you will find कि अलग अलग जगह पे, क्या कहते हैं, अलग अलग चीज़ों से जब बनाया गया. लाइक सिमिलरली यू हैव कि क्यों पर्टिकुलर टेम्पल्स को, क्यों पर्टिकुलर चीज़ों को यू हैव अंडर योर हेरिटेज साइट्स, ठीक है, कि क्यों उनको वहाँ पे रखा जाता है. इट विल हैव एन आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस, बी इट आइदर इन टर्म्स ऑफ योर काइंड ऑफ क्राफ्टमैनशिप जो उसको बनाने में आपकी गई थी, बिकॉज इट कुड हैव बीन कि जो थॉट उसके पीछे गया था, इट कुड हैव बीन अनपैरेलल्ड. लाइक हड़प्पा के टाइम पे वी विल सी कि आपका जो प्लानिंग था ऑफ सिटीज वाज अनपैरेलल्ड इन और अनहर्ड किसी भी और जगह पे, ठीक है. नॉट ओनली ऑन दैट टाइम, इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेटर्स ऑल्सो, ठीक है. किसी भी और सिविलाइजेशन में उतनी अच्छी प्लानिंग आपको नहीं दिखती है. सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर, क्यों उसको आप हेरिटेज साइट्स में रखेंगे, ठीक है. सिमिलरली यू विल हैव मेनी शो टेम्पल्स, जैसे आप महाबलीपुरम में जाएंगे आप साउथ में, तो यू हैव दो शो टेम्पल्स जो चोला का लिविंग टेम्पल्स विच वी से कि दोज टेम्पल्स दे बिकेम पार्ट ऑफ योर यूनेस्को हेरिटेज साइट्स. द रीज़न वॉज दैट ओनली कि आर्किटेक्चर में दे हैव यूज्ड ग्रेनाइट, ठीक है. आपके जो पत्थर यूज़ किया गया था, ग्रेनाइट यूज़ किया गया था. एंड दे से कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ग्रेनाइट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स, ठीक है. सबसे हार्ड मटेरियल आपका ग्रेनाइट होता है, बिकॉज दैट वाज द रीज़न वी सेड कि यू डिड नॉट हैव योर डेल्टास फॉर्मेशन बाय नर्मदा एंड तापी रिवर, है ना. डिस्पाइट दे आर फ्लोइंग फॉर अ लॉन्गर कोर्स, वेस्टर्न साइड में आपको डेल्टा का फॉर्मेशन इसलिए नहीं मिलता है बिकॉज दे आर फ्लोइंग फ्रॉम अ रिफ्ट वैली. और जो रॉक्स के जो एडजेसेंट रॉक्स है, दे आर ऑल योर हार्ड रॉक्स. ग्रेनाइट के रॉक पत्थर हैं तो उसको वो कट नहीं कर पाता, इरोड नहीं कर पाते हैं इतना कि यू विल हैव अ डेल्टा फॉर्मेशन देयर, ठीक है. तो उसी की तरीके से यू विल फाइंड कि आर्किटेक्चर में किस तरीके का मटेरियल यूज़ हो रहा है. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. इट
शोज यू कि किस तरीके का क्राफ्टमैनशिप वॉज देयर, किस तरीके का आपका योर आइडिया वॉज देयर अमॉन्ग्स द पीपल, ठीक है. इट शोज कि कितना लेवल ऑफ से अर्बनाइजेशन या कितना एडवांसमेंट आपकी सिविलाइजेशन का था उस टाइम पे, ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर? स्कल्पचर पोट्री हो गई. स्कल्पचर इज नॉट पॉटरी एग्जैक्टली. छोटी-छोटी मूर्ति जो होती है. हाँ, तो मूर्ति आर्किटेक्चर में बड़ी पैमाने में होता है. नहीं, छोटी छोटी ह्यूमन स्ट्रक्चर दिया जाता है वो स्कल्पचर्स होंगे. और नहीं, इट इज what you are saying, what you are also saying is a part, it is not the exact definition. Sculpture जाता है किसी भी चीज को स्कल्पचर बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल रॉक, वही you do not mold actually, you have a piece of rock, you sculpt. Sculpt का मतलब होता है कि you have a chisel and you shape, है ना, either you carve, ठीक है. तो उस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं आपके, ठीक है, those are termed as your sculptures, whereas architecture is building something, है ना. you will have a monument or you can have other things also, ठीक है. so those things will be part of your architecture. Sculpture is more or less related to carving or creating something out of a piece of a rock or a मोस्टली जो पीस ऑफ रॉक से होता है, यू कैन डू अ स्कल्पचिंग ऑन योर वुड ऑल्सो, ठीक है. आप जो उस पर भी आपको दिखेगा, लेकिन जो हमें जो मिलता है इन टर्म्स ऑफ आवर हिस्ट्री, नेचुरली वी विल फाइंड स्कल्पचर्स फ्रॉम योर रॉक्स, ठीक है. वुड वाली जितनी भी कार्विंग है, मोस्ट ऑफ देम दे आर क्या कहते हैं, आइदर दे हैव बीन इरोडेड और दे हैव बीन डिग्रेडेड, ठीक है. तो जो हम इंडियन आर्किटेक्चर को क्लासिफाई करते हैं, वी क्लासिफाई इन टर्म्स ऑफ योर एजेस, ठीक है, कि किस किस एज में किस किस तरीके का आपका आर्किटेक्चर बना था. तो वी हैव योर एंशिएंट इंडिया, वी हैव योर मिडाइवल इंडिया एंड यू हैव योर मॉडर्न इंडिया, ठीक है. टुडे विल फोकस मोस्टली ऑन आर एंशिएंट इंडिया, ठीक है. तो एंशिएंट इंडिया में जब आप देखते हैं तो जो सबसे मेजर क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एंड देन लेटर ऑन इट गिव्स वे टू योर मौर्यन आर्ट, ठीक है. मौर्यन आर्ट के बाद हमारा जो पोस्ट मौर्यन आर्ट आता है, विल फाइंड कि मौर्य, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, यू विल फाइंड कि पोस्ट मौर्यन किंगडम्स यू डिड नॉट हैव अ वेरी सॉलिड एम्पायर. कोई एक सिंगल मेजर एम्पायर नहीं था जो पूरे पैन इंडिया में रूल कर रहा था. यू हैड वेरियस डायनेस्टीज, बीट फ्रॉम योर नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, साउथ, हर जगह जो है छोटी छोटी अलग अलग डायनेस्टीज जो है वो रूल कर रही थी. तो यू विल फाइंड कि हाउ दीज डायनेस्टीज दे हैव शेप्ड द आर्किटेक्चर इन पर्टिकुलर एरियाज. उनकी पर्टिकुलर बिलीव से किस तरीके से वो शेप हुआ था. देन वी मूव ऑन टू आर one of the most important ages in terms of art and culture, Gupta age, ठीक है. Gupta age is termed to be your golden age in terms of art, ठीक है. तो आप गुप्ता एज में जाएंगे, then we'll shift to our focus in South Indian architecture, mainly temples में. We'll again classify here only कि temples आपके किस तरीके से हैं, be it in your North India, South India and your especially Visara type जो हम कहते हैं, your mixed type of temples, ठीक है. यू हैव मैप्स वगैरह लेकर आए थे आप लोग, आज नहीं लेकर आए क्या? एटलस यू डू नॉट हैव? एटलस है, ठीक है. बिकॉज व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि अगर अभी आपके पास नहीं है तो बिकॉज विल शो यू फ्यू लोकेशंस. इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ द लोकेशंस कि ये लोकेशन है, और एल्स इट हैज बीन आस्क्ड वाइस वर्सा कि अगर ये चीज़ आपको हर एक पर्टिकुलर लोकेशन के स्पेसिफिक देयर हैज़ बीन अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ व्हाट डू यू मीन की सिग्निफिकेंस, ठीक है. बीट आइदर इन टर्म्स ऑफ कि किस तरीके के रिमेन्स आपके मिले थे, किस तरीके का आर्किटेक्चर जो था वॉज प्रोमिनेंट हियर, ठीक है. इट हैज़ बीन आस्क्ड वाइस वर्सा बोथ द वेज, ठीक है. सो इन टर्म्स ऑफ दैट योर लोकेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. ऑल्सो यू विल फाइंड दिस बजट पढ़ा था आप लोगों ने इस बार का. दिस बजट हैज़ सम न्यूज़ फॉर योर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन. क्या 5 जगहों को हमने सब वहाँ पे म्यूजियम्स बना रहे हैं. 5 जगह को म्यूजियम्स बना रहे हैं. कौन कौन सी जगह है? आखेगढ़ी से 3 है टोटल, 5 है टोटल. एक आखेगढ़ी हरियाणा, लोथल भी तो बड़ी म्यूजियम बन रहा है. लोथल है, हाँ, लोथल है. हाँ ये सब एंडी में साउथ इंडिया में. You will find कि the reason why those sites were chosen was कि
इंडिया की जो दो सबसे बड़ी आपकी हड़प्पा मोहनजोदारो की साइट्स हैं, दोज आर दो साइट्स, ठीक है। वन वाज योर राखीगढ़ी, ठीक है। सबसे बड़ी जो सभ्यता थी राखीगढ़ी हो गई। हाँ, अब जो इन टर्म्स ऑफ ग्लोबली भी अगर आप देखते हैं तो टॉप 5 आपकी जो सबसे बड़ी सिटीज़ आती हैं उसमें 3 जो है पाकिस्तान में हैं, जो बाकी 2 हैं उन दोनों को क्या कहते हैं, वी आर डेवलपिंग इन टर्म्स ऑफ योर म्यूजियम्स, ठीक है, जो इस बार आपके बजट में आया है। सो दोज थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर करंट अफेयर्स की तरीके से, दे कैन बी आस्क्ड इन योर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, कि किस तरीके से आपका वो देखा गया है। देन वील सी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज योर ब्रॉन्ज एज, ठीक है। यू विल फाइंड कि डिफरेंट एजेस में जो है हिस्ट्री को आपने क्लासिफाई किया गया है बेसिकली इन टर्म्स की कौन सा मटेरियल या फिर कौन सा इक्विपमेंट वाज मोस्ट डोमिनेंट, ठीक है। जैसे आप स्टोन देखेंगे, फिर ब्रॉन्ज देखेंगे, कॉपर देखेंगे, आयरन देखेंगे, उस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग एजेस जो हैं पूरी आपकी हिस्ट्री में डिवाइडेड हैं। तो योर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वाज अंडर योर ब्रॉन्ज एज, ठीक है। यू विल फाइंड कि बहुत सारी, हम आगे एक फोटो देखेंगे बेस्ड ऑन योर डांसिंग गर्ल की एक आपकी इमेज है, ठीक है। सो दैट डांसिंग गर्ल वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज की, उसमें क्या कहते हैं, कास्टेड इमेज इज देयर। इफ यू हैव विजिटेड डांसिंग गर्ल इज नॉट एन एक्चुअली स्कल्पचर, एग्जैक्ट सेंस में स्कल्पचर नहीं है वो। विल फाइंड कि जैसे आप जो मोल्डिंग टेक्निक आप बोल रहे थे, देयर वाज अ टाइप ऑफ टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, उससे बनाया जाता है। विल डिस्कस किस तरीके, तो वो इफ़ यू गो टू नेशनल म्यूजियम, इसलिए हम बोल रहे हैं, यू हैव वहाँ पे क्या कहते हैं, दिस डांसिंग गर्ल का फोटो, ठीक है, जो आपका हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। आप जब जाते हैं इन योर नेशनल म्यूजियम ऑल्सो, इट स्टार्ट्स विथ योर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन ओनली, ठीक है। यू विल फाइंड कि बहुत यहाँ पे वट एवर वी आर डिस्कसिंग, यू कैन गो देयर एंड यू कैन सी, एंड अगेन इट विल बी अ मोर रिविजन, आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। यू कैन गो एंड विजिट, आप एक दिन आपका लगेगा, ठीक है। देन वी विल फाइंड कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, इट वॉज फ्लरिशिंग ऑन द बैंक्स ऑफ योर इंडस रिवर एंड घग्गर रिवर। घग्गर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर जिसका मेंशन आप देखते हैं इन योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑल्सो आप जब वेदास की जब आप डिस्कशन करते हैं, ऋग वेदास ऑल्सो हैज अ मेंशन ऑफ योर घग्गर, ठीक है। उस टाइम पे आप यमुना और गंगा रिवर्स जो आपकी मेजर रिवर्स हैं, यू विल नॉट फाइंड की मेंशन ऑफ दोज रिवर्स। ऑल्सो व्हेन यू मूव, व्हेन यू विल सी कि किस तरीके से आपका क्या कहते हैं वो मूव हो रहा है, जैसे जैसे आपका क्या कहते हैं, रिवर्स जो थी दे शिफ्टेड योर ईस्टवर्ड्स, ठीक है। इंडस रिवर जो थी, यू विल फाइंड कि इट वाज शिफ्टिंग ईस्टवर्ड्स। तो जैसे जैसे आप सिविलाइजेशंस को देखते हैं कि वॉट एवर सिविलाइजेशंस वर देयर, व्हेन दे वर मूविंग दे मूव्ड ईस्टवर्ड्स, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे आपकी रिवर थी तो यू हैड ऑल द सेटलमेंट्स हियर, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। देन वी कुड सी कि इंडस शिफ्टेड इट्स कोर्स टू ईस्टवर्ड, एंड देन यू विल फाइंड कि जो न्यू साइट्स आपकी डेवलप हुई थी, दोज दे डेवलप्ड ऑन दीज बैंक्स, ठीक है। कि तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो यू विल रिलेट कि दीज क्या कहते हैं सिविलाइजेशंस, दे वर ऑन द बैंक्स, ठीक है। हम आगे बाद में देखेंगे कि यू विल फाइंड देयर इज दिस रिपीटेड कोर्स की आपका, अगर ये एक बेस है जिसके ऊपर आपने एक बिल्डिंग बनाई है, यू विल फाइंड कि बिल्डिंग्स आर बिल्ड रिपीटेडली ऑन द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्ट्रक्चर के ऊपर दोबारा बनाया गया, दोबारा के ऊपर तिबारा बनाया गया। यू विल फाइंड कि स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट अगेन एंड अगेन। दिस वाज जस्ट टू शो कि देयर वाज फ्लडिंग एक्चुअली, ठीक है, कि फ्लडिंग बहुत बार हुई थी, आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो गिरे थे, फिर जब वापस से फ्लडिंग आपकी हटी, फिर उस स्ट्रक्चर के ऊपर फिर दोबारा बनाया गया कि नेक्स्ट फ्लड से बचा जा सके, ठीक है। यू राइज दो स्ट्रक्चर्स टू अ मोर ग्रेटर हाइट्स, ठीक है। तो उस तरीके का जो आपको हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में आपको दिखता है, ठीक है। You will also find कि these two ancient civilizations, जो आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, आप मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बोलते हैं, we have marked मेसोपोटामिया civilizations if you remember, नहीं we marked इराक एंड ईरान में जो रिवर जा रही थी, we have discussed that कि those rivers along the banks of those rivers only your हाँ यूफ्रेटिस रिवर इज देयर ना, तो उसी बैंक पे आपकी जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी आपकी हुई थी, ठीक है। एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज ऑन द बैंक ऑफ नाइल, ठीक है। ऑन योर क्या क्या हाँ चाइना वाज ऑन योर येलो रिवर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि चाइना सिविलाइजेशन विद टर्म मोर इन टर्म्स ऑफ योर मिडाइवल सिविलाइजेशन, ठीक है। इट वाज नॉट दैट प्रोमिनेंट इन योर एंशिएंट
वो थोड़ा सा आपका था जब आपका इन योर से 3rd century BC में कन्फ्यूशियस एंड ऑल दे वर देयर, दैट पार्ट वाज प्रोमिनेंट, ठीक है। उसके बाद से देन विल डिस्कस, तो व्हाट आई हैव टेकन दिस इज फ्रॉम योर विकिपीडिया ओनली, ठीक है। वहाँ पे टेबल इज देयर, यू कैन गो एंड रीड अबाउट द मेजर, क्या कहते हैं, कौन कौन सी साइट्स आपकी वहाँ पे आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट आई टेल यू कि अगर आपके पास था तो, और एल्स यू कैन राइट, ठीक है।